Hi all, my name is Hira Shaheen and today I am going to continue with the topic of transportation problem which we are discussing in the last video. We had seen what is this transportation problem. We had seen how to find this initial basic feasible solution using various methods like Vogel's approximation method. We had seen northwest corner method. We had seen least cost cell method. Now we'll see after finding this initial basic feasible solution how to find this optimal solution. Okay. So now this was the question in which F1, F2, F3 are the three factories given and W1, W2, W3, W4 are the four uh, workstations are given or workers are given, I think. Yes. Now the requirement and availability is also given here. Like requirements for those worker W1, W2, W3, W4 are given in the last of these columns, and availability of F1, F2, F3 is given here in the end of these rows. Okay, it is outside this table or matrix, you can say. Now we have already calculated this initial basic feasible solution with Vogel's approximation method. So this is the solution. What is this? We have allocated 5 in this F1W1, 2 in F1W4, F2, 7 in F2W3, 2 in F2W4, and 8 in F3W2 and 10 in F3W4. So we have done this allocation using initial basic feasible solution using Vogel's approximation method. So we calculate its cost. Its cost is 19 into 5 plus 10 into 2 plus 14 into 7 plus 16 into 2 plus 8 into 8 plus 20 into 10. So it is coming 779. So we just multiplied the cost given with the number of units allocated in that particular cell. So we had calculated this. Now, see, number of allocations is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 number of allocation, and m plus n minus 1 is what? M is number of rows. Number of columns is what? 4. 3 plus 4 minus 1. So it is 7 minus 1, 6. So these both are equal. So we can say that it is not degenerate problem, and also it is an independent positions. Independent position is what? Means we cannot make loop of that when we draw straight lines with the allocated points like this. Suppose in this example, the dot points are showing allocations. So if we try to make loop, we cannot make loop. यहाँ पे we have this restriction that we cannot move diagonally, means हम लोग तिरछा नहीं मुड़ सकते हैं, only straight line और 90 डिग्री से ही हम टर्न ले सकते हैं. तो अब आपके पास कोई भी पाथ नहीं बचता है और हम टर्न हमेशा जहाँ एलोकेटेड सेल होते हैं वहीं से कर सकते हैं. तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका कोई भी लूप नहीं बन रहा है, यानी कि क्लोज्ड पाथ लूप इस तरह का अगर बन जाता है तो ये कहलाता है क्लोज्ड पाथ. यहाँ नहीं बन रहा है तो इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट पोजीशन. सो आपका अगर इस तरह का है तो वी कैन मूव अहेड. अब चेक करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं है. तो मोदी मेथड क्या कहता है? यू हैव टू कैलकुलेट यूआई एंड वीजे फॉर द ऑक्यूपाइड सेल्स. और ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हम कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला क्या करते हैं हम लोग? यूआई प्लस वीजे इज इक्वल टू सी आई जे. यूआई प्लस वीजे इज इक्वल टू सी आई जे, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग.
अब यहाँ पे U1, U2, U3 हम लोग रोज के लिए ले लेते हैं और कॉलम्स में V1, V2, V3 जितने कॉलम्स हैं उतने हम V बना लेंगे और जितने रोज हैं उतने हम लोग UIs बना लेंगे। अब यहाँ पे ये जो CIJ यानी जो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर सेल का, वो हम कहेंगे कि इसके बराबर है, यानी U1 + V1 = 19, U1 + V1 = 10। इससे हमें करना क्या है, ये U1, U2, U3 एंड V1, V2, V3, V4 की वैल्यूज हमको फाइंड आउट कर लेना है। तो जितना भी इस तरह का एलोकेटेड सेल है उन सबका हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास कितने एलोकेटेड सेल है, 6, तो 6 इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी और उसमें से हमें स्टार्ट क्या करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है इसको। किसी एक को हम 0 मान लेते हैं, जैसे U1 को मान लीजिए 0, तो यू कैन फाइंड द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स। U2, U3 you will automatically find out with these equations like this. U1 + V1 is equal to C11. So U1 we have assumed 0 plus V1 = 90. So V1 is coming 19. ठीक है। उसी तरह U1 + V4 is equal to C14. तो यहाँ पे U1 की वैल्यू 0 है तो plus V4 = 10. It means V4 is 10. तो ये सब वैल्यूज हमें इस तरह से सब निकल आएंगी। तो यहाँ पे हमारे U2 की वैल्यू 50 आ रही है। जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा UI + VJ = CIJ और एलोकेटेड सेल्स, उनके लिए करके हम लोग ये सारे वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आ गई। अच्छा, अगर आप इसमें से किसी और कोई 0 मानेंगे तो ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, किसी का और डिफरेंट आ सकता है, बट द थिंग इज दैट कि जो हम लोग को टेस्ट करना है वो उसका रिजल्ट डिफरेंट नहीं होगा, उसका रिजल्ट सेम रहेगा। तो इसलिए आप किसी को भी 0 मान सकते हैं, बट जनरली क्या किया जाता है, U1 से शुरू किया जाता है कि U1 को 0 मान लेते हैं। नेक्स्ट, नाउ व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर फाइंडिंग दिस, now after finding this we have to find del ij, sometimes it is also called dij। ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये हम किसके लिए निकालते हैं, फॉर अनएलोकेटेड सेल। इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, CIJ माइनस DIJ या डेल IJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI + VJ। ठीक है, तो ये हम किसके कौन से सेल्स के लिए करेंगे, अनएलोकेटेड सेल के लिए। UI और VJ हमने निकाला था एलोकेटेड सेल के लिए, और यहाँ पे हम ये जो निकालेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये निकालेंगे हम लोग अनएलोकेटेड सेल के लिए। तो जो हमारा मैट्रिक्स था उसमें जो जो अनएलोकेटेड सेल्स है, फॉर क्विक रिजल्ट वी आर डूइंग लाइक दिस, और यू कैन डू इंडिविजुअली ऑल्सो। ओके, सो आई एम डूइंग दिस वे, इससे आपका आंसर और ये रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। So I am taking this values 30, 50, 70, 30, 40 and 70. These are the unallocated cells. So these are the CIJ and UI plus VJ. उस particular cell का UI और VJ है ना, हम लोग उसको एड अप करके यहाँ लिख रहे हैं, तो ये आ रहा है -2। आप वेरीफाई कर सकते हैं। अभी आपको मैंने UI और VJ की वैल्यूज बताइए, U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4 सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या है, 69, 48, यहाँ है 29 and this is 0. So this is the value of UI and plus VJ, and this matrix is CIJ and this is UI plus VJ. Now we have to find del IJ. तो del IJ क्या करना है, उसमें से इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो you can do in one place also, बट आपको ये देखने में समझ में आए इसलिए मैं अलग अलग टेबल या मैट्रिक्स बना रही हूँ। ओके,
Now what you will get, 30 minus 2, it is 30 minus 2, it will become 32, isn't it? Now 50 minus 40 is 10, and 70 minus 69 is 1, 30 minus 48 is minus 18, and 40 minus 29 is 11, and 70 minus 0 is 70. Now you have got all the Dij. And the rule is that if you have got any Dij less than equal to 0, it means you have not got the optimal solution. Okay. And if all the Dij is greater than equal to 0, then you can say that your optimal solution has been achieved and no more further improvement has to be done. But you can see here, this matrix is for Dij or del ij, you can say anything you do, whatever you want to say. But del ij's value, all del ij is not greater than equal to 0. All del ij is not greater than equal to 0. It is not. ये सारे आपके greater than equal to 0 होने चाहिए. It is not greater than equal to 0. It means your optimal solution, all del ij, is not greater than equal to 0. It means optimal solution is not achieved. So you need to do some improvement. So how to do it, we'll see just now. Okay. Now you make this matrix or table again. Let me do it. Okay. And we will write only allocated values in that cell. Okay. तो ये आप जो सबसे पहला जो हमें इनिशियल इस स्टेप में जो पहले हमें एलोकेशन मिला है, वो एलोकेटेड वैल्यूज इसमें हम लिख लेंगे. I have 5, 2, 7, 2, 8, 10. Seven, 2, and this is 8, and this is 10. Now we have to make a loop. Loop हमको कैसे बनाना होता है? कोई particular unallocated cell से शुरू करते हैं और हम allocated cells पे ही turn करेंगे और जहां से शुरू करेंगे वहीं पे हमको वापस आना है. तो एक लूप बनाना है. अगर हम कोई पर्टिकुलर सेल अगर सपोज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो हमको देखना है कि हम ऐसा कोई लूप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड करना है और हम वहीं से मूव कर सकते हैं जहाँ पे एलोकेटेड सेल है. तो आप कैसे कर सकते हैं? सपोज यहाँ से आप इस पे आए, फिर इस पे आए, फिर इस पे आए, इस पे आए, ऐसे कर सकते हैं. या यहाँ ले और इसको सपोज मैं थीटा से डिनोट कर रही हूँ, तो यहाँ से हम इस जगह, फिर यहाँ, फिर यहाँ से आ सकते हैं और ये लूप बन सकता है. तो ये हम लूप बना लें. अब इसमें क्या करते हैं, अल्टरनेटली हम प्लस माइनस एलोकेट करते हैं. तो यहाँ पे प्लस करेंगे, जहां से शुरू करते हैं उसको प्लस देते हैं, फिर नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट्स पे, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स पे माइनस, नेक्स्ट जो यहाँ पे से शुरू किया हमने इधर से गए हैं तो यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस.
अगर आप इधर से भी आते हैं तो ये वाला आपका माइनस होता, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, इस तरह से आपका ये हमने इसको एलोकेट कर दिया। अब थीटा के वैल्यू को कैसे निकालते हैं? थीटा हम लोग निकालते हैं मिनिमम जो निगेटिव वाला सेल है, यानी यहाँ और यहाँ, उसमें हम क्या कहेंगे कि 8 माइनस थीटा और 2 माइनस थीटा, उन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको लेंगे, यानी निगेटिव वाले सेल में। तो थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो प्लस कर रहे हैं वो एक्चुअली करते हैं क्या, हम लोग थीटा को ऐड करते हैं, थीटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से जब हम थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या 8 माइनस थीटा और ये क्या होगा 2 माइनस थीटा। अब इन दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सपोज 8 माइनस थीटा इक्वल टू 0, तो व्हाट डज इट मीन, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, और 2 माइनस थीटा को अगर हम 0 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस थीटा को 0 करेंगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2। अब इन दोनों में मिनिमम क्या है 2, तो ये आपका थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे वो अभी आपको बताएंगे। हमें करना है थीटा का जो ये वैल्यू आ रहा है वो हम इसमें, जहां प्लस जिस सेल में है उसमें हम ऐड करेंगे और माइनस जिस सेल में है उसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो अनएलोकेटेड सेल था वहां पे तो कुछ एलोकेटेड नहीं था, इसका मतलब क्या है कि वहां पे एलोकेशन 0 है। तो वहां जब ऐड करेंगे तो वो तो थीटा जो था वही हो जाएगा, और जहां सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वहां जो वैल्यू था पहले वो उससे कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम थीटा में थीटा के वैल्यू ऐड करेंगे तो ये 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, और 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। तो ये न्यू एलोकेटेड वैल्यूज आ गया। अब इससे होता क्या है, यू कैन सी जो अनएलोकेटेड सेल था ये वाला जिसमें थीटा डाला हमने, इट हैज नाउ एलोकेटेड वैल्यूज। इट मींस ये अब सेल जो है एलोकेटेड हो गया, और जो ये वाला सेल था जिसमें 2 एलोकेटेड था, ये सेकंड रो में फोर्थ कॉलम, यहाँ पे 0 हो गया, यानी अब ये अनएलोकेटेड हो गया और ये वाला सेल एलोकेटेड हो गया। ठीक है ना, ये सेल एलोकेटेड हो गया और ये सेल अनएलोकेटेड हो गया। Let me draw it again. ठीक है, तो ये आपका 5 2, यहाँ पे आ गया 2, और ये हो गया 0। वी डोंट नीड टू राइट हियर नाउ। 7 8 एंड 10 ये एलोकेटेड वैल्यूज है, तो इसको हम सर्किल के अंदर लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आप इसका टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। इस स्टेप में आपका टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है, जो ओरिजिनली इसका कॉस्ट है इस सेल में उनसे इस एलोकेटेड यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, देन यू विल गेट द टोटल कॉस्ट। और हम चेक करेंगे कि जो हमें सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का जो कॉस्ट आ रहा था, क्या उससे ये वाला सॉल्यूशन का कॉस्ट इम्प्रूव हुआ है। और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा सॉल्यूशन अभी आ रहा है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो दिस स्टेप विल हैव टू मूव ऑन, और वी हैव टू डू दिस स्टेप्स रिपीटेडली अंटिल वी गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से उसको देखेंगे। लेट मी डू इट नाउ। तो the cost given in the matrix is this. Here it was 19, here it was 10, here it was 30, here it was 40, here it was 8, here it was 20. Now it has become 12. ये तो 12 हो गया है ना। Let me just see again.
Okay, so earlier it was 10, but after doing improvements and modification, it has become 12 unit. है ना? Now we will find again the total cost. How we will find? 19 into 5 plus 10 into 2 plus 30 into 2 plus 7 into 40. When you will do this and multiply, after doing this multiplications, add them all, and we are getting this 743, which is lesser than the earlier cost. Okay, so let us check that whether we have got the optimal solution or not. So we have to do the same process again. What was the process? Again, you check number of allocation is 6, and which is equal to m plus n minus 1 के बराबर है. ठीक है. And also these are independent locations. Now do ui and vj for the allocated cells. Again, find out u1, u2, u3. आप एक बार पहले निकाल चुके हैं, but you have to find it again. Why? Because the allocated cells and values are also changed. So you have to find for allocated cells ui and vj. तो आप क्या देखेंगे कि u1 plus v1 is equal to क्या है 90, u1 plus v4 is equal to 10, u2 plus v2 equal to 30. तो जितने एलोकेशन है उतने इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगे, और फिर आप सबकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे. u2 plus v3 इक्वल टू ये आपका 7 नहीं, यहाँ पे 40 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग Cij लेते हैं. उसी तरह u3 plus v2 is equal to 8 and u3 plus v4 is equal to 20. अब हम लोग क्या करेंगे, u1 की वैल्यू को 0 ले लेंगे और v1 निकाल लेंगे. उसी तरह से जब हमारे पास v1 आ जाएगा तो जिस इक्वेशन में इसकी वैल्यू यूज की गई है उसकी वैल्यू पुट करके हम बाकी सारी वैल्यूज निकाल लेंगे. यहाँ पे आपका u1 इक्वल टू 0 डालने से दोनों वैल्यूज v1 और v4 निकल आएगा. तो जिसकी वैल्यूज आपके निकलती आएगी उनको यूज करके आप बाकी सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे. अब जैसे ui एंड vj निकल जाएगा, फिर हमें क्या निकालना है, डेल ij. तो अभी देखते हैं हम लोग पहले ui एंड vj एंड उसके बाद डेल ij क्या आ रही है वैल्यूज. तो अभी जो ये हमने निकालेंगे तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए जो हमारा वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है, u1 की वैल्यू को हमने 0 असाइन किया तो v1 की वैल्यू 29 आ रही है, v2 की वैल्यू 8 आ रही है, v3 की वैल्यू 18 आ रही है एंड v4 की वैल्यू 20 आ रही है. एंड ये मैंने निकाल रखा है. यहाँ पे ये नहीं, u1 को 0 नहीं, u3 को 0 लिया है. देन आई हैव गॉट u1 एंड u2. आप किसी को भी लेके शुरू कर सकते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू. सो वी हैव गॉट दिस वैल्यूज. u1 की वैल्यू हमें -10 आ रही है, u2 की 22, u3 की 0. u3 की 0 हमने अज्यूम किया और फिर उसी से हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट किया. अब ये निकालने के बाद हमें क्या करना है, डेल ij निकालेंगे. डेल ij क्या होता है, Cij माइनस ui प्लस vj, जैसे हमने पहले वाले टेबल में किया था. जैसे यहाँ पे ये हमने निकाला था एलोकेटेड सेल से. एक सेकेंड. ओके, सो डेल ij जो आपका आता है वो हम निकालते हैं अनएलोकेटेड सेल से, है ना. तो हमने जैसे पिछले वाले स्टेप में निकाला था सेम वैसे ही कर लेंगे. दो मैट्रिक्स बना लेते हैं, अनएलोकेटेड सेल्स के कॉस्ट लिख लेंगे और ui प्लस vj लिख लेंगे, और तीसरा एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसमें
CIJ माइनस UI प्लस VJ निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिर से कि सारे डेल IJ ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन, जो करंट सॉल्यूशन है, इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। Otherwise we have to repeat all these steps which we have done, ठीक है। तो अभी हम लोग निकालेंगे इसको, आप लोग भी ट्राई कीजिए। आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं, मैं कैलकुलेट कर रखा है। Now you can see this, these two tables or matrix. This is for CIJ. I have taken from this from unallocated cell. I told you that we find this or calculate this from unallocated cells. तो ये आपका CIJ वो हमने लिख लिया, ये जो ओरिजिनल आपका इसका CIJ है वो ही है। और ये क्या है, ये UI प्लस VJ, जो अभी हमारा करंट जो UI VJ है उसकी वैल्यूज को हम उस पर्टिकुलर सेल के ऐड किए हैं। अब नाउ वी सबट्रैक्ट दिस, इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में सबट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस 2 यानी कि 30 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा 32। ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 8 यानी 42, 70 माइनस 51 यानी 19, 60 minus 42 यानी 18, 40 minus 29 11 and 70 minus 18 is 52. So this is Dij, or you can say del ij. So here you can see that all Dij you are getting is greater than equal to 0. All are greater than equal to 0. It means the current solution is optimal solution. This solution which we have got, जो अभी हमने देखा, जो सेल्स में हमने allocation किया after doing improvement of the first iteration, that is the optimal solution. It means we have got the optimal solution, और जो हमारा optimal solution है वो हम बताएंगे और फिर उससे हम total cost, optimal solution, total cost क्या आया वो भी हम बता देंगे। जैसे अभी हमने निकाला था टोटल कॉस्ट क्या आ रहा था, तो वही टोटल कॉस्ट आपका हो जाएगा और ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही हो जाएगा जो अभी हमने जस्ट निकाला था, ठीक है ना। तो आई थिंक इट वाज, दिस वाज योर current allocation and the total cost is this, so we can say this is the optimal solution. So that's all for today. We'll see another topic in the next video. Thank you, thanks for watching. If you will like my video, just hit the like button, share it and subscribe my channel. Thank you again, thank you, thanks for watching.